It is my proud privilege and pleasure to introduce Dr. Ashok Jetawat in front of you. Dr. Ashok Jetawat is the Chief Coordinator of International Forum for Jain Education and Chairman of Motivational Society of Achievers. He is a certified career counselor of Gold Standard for working professionals, college graduates and other categories. After completing graduation in engineering, he did MTech, MBA and Masters in three other disciplines. He did his doctorate in e-governance. Dr. Jetawat was felicitated as Scroll of Honor by the Institution of Engineers India on 43rd Engineers Day towards the contribution and services for the engineering fraternity at the large. Dr. Jetawat was given the Award of Fellowship 2019-20 by the National Council of Indian Institute of Industrial Engineering. Dr. Jetawat is a corporate trainer having specialization in team building, time management, productivity, work commitment, e-commerce, e-governance, study techniques, mind management, stress management, concentration, soft skills and personality development. Hundreds of corporates from various organizations have benefited from the seminars given by Dr. Jetawat. He is also a guiding force for the prisoners of Udaipur Central Jail. He has delivered seminars in many corporate houses, Chamber of Commerce and Industries. He is the member of Special Interest Group on e-governance of Computer Society of India. He is also a professor and research guide in university. 13 students have already completed PhD under his guidance and 8 more students are doing. He is the life member of CSI, IEI India, IIIE, IIMM, ISTD, Vigyan Samiti, JEES and many other professional bodies. He is also the active member of Internet Governance Capacity Building Program, whose head office is in Geneva. Dr. Jetawat has published more than 50 research papers in various national and international journals. Dr. Jetawat was also awarded fellowship from Indian Institution of Engineers in 2023. He is the executive member of UCCI 24-25 and member of Vocational Training Program of NSDC Government of India being conducted in the chamber. With this, a big round of applause. Let's welcome Dr. Jetawat. थैंक यू अमन जी, आपने जेतावत साहब का परिचय प्रदान किया। अब इसी के साथ चलिए डॉक्टर श्रीमान जेतावत साहब को आमंत्रित करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पधारे और छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करें। डॉक्टर जेतावत साहब। हम आज उस प्रोसेस को देखेंगे कि डिसीजन कैसे लिया जाए और बच्चे जो उनके मन में है उस डिसीजन तक कैसे पहुंचे। बीच में पिछले 15-20 साल से हमें मौके मिले कई सारे करियर सेमिनार्स करने का, अलग अलग स्कूल कॉलेज, शायद राजस्थान का ऐसा कोई स्कूल है कॉलेज नहीं होगा जो हमारे या फिर कोई ऐसा कॉर्पोरेट नहीं हाउस नहीं होगा जहाँ पे कि हमारे प्रेजेंटेशन नहीं हुए। अलग अलग जगह हमारे लगातार प्रेजेंटेशन होते रहे हैं और पिछले 10 साल पहले एक बार करियर काउंसलिंग का महासभा लेवल पे भी अपने जो सेक्टर 14 में जो भवन है वहां पे एक प्रयास किया था। काफी लोग आए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सभी की जगह से, तो लगातार कर रहे हैं। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इसी साल 20 फरवरी 2025 को आई वॉज अवॉर्डेड एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड कैरियर काउंसलर इन इंडिया। There are very few counselors of this category जो करियर काउंसलिंग में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं। आज हम जो भी बताएंगे वो साइंटिफिक बात बताएंगे। साइंटिफिक देखिए, करियर काउंसलिंग इंडिया में एक नई चीज है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में हर बच्चे के लिए कंपल्सरी है। और जो वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जैसे रियाज के टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन ऑनलाइन है, कुडर नेविगेटर है, करियर कीज है, ये इंटरेस्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पे करियर काउंसलिंग की जाती है। इसी तरह से यदि अपन पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी में MBIT, फिर बिग 5, DISC-16PF, ये सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज है। एप्टीट्यूड की बात करें तो ASVAP
काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। स्ट्रेंथ और वैल्यूज की बात करें तो क्लिफ्टन स्ट्रेंथ, VIA सर्वे, बेल्ट्रेड वैल्यूज ये टेक्नोलॉजी है। और जैसे भारत का संविधान बना था, भारत के संविधान में आपको पता है कैसा बना था? सारे विश्व के टॉप जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन सभी का संविधान लेके और उनके सभी की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको समाहित करके हमारा संविधान बना। तो प्रिय छात्रों, आज हम जो बात करेंगे ये जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजीज है उन सारी टेक्नोलॉजीज को समाहित करके सभी टेक्नोलॉजीज में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मैं आप आज को बताने वाला हूं। लेकिन एक बात बताऊं, यदि मैं 18 साल का होता, क्या यदि मैं 18 साल का होता और यदि मेरे को कोई करियर ऑप्शन चूज करने को बोलते तो मैं इसी फील्ड को चूज करता। अब मैं थोड़ा सा बताऊं, टोटल इस दुनिया में कितने कंट्री हैं? 190 195 के आसपास। अभी हमारी जेनोलॉजी में सिर्फ 15 कंट्री में काम होगा। कितना? 15 कंट्री में। और 190 कंट्री में काम होना बाकी है। कितने? 190 कंट्री में काम होगा। अब ये काम कैसे होता है मैं बता दूं। एक यूनिवर्सिटी में क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारे जेनोलॉजी में हमारा प्रोफेसर क्यों अपॉइंट करेगी? तो यूनिवर्सिटी हमारे से चार्ज लेती है। एक प्रोफेसर को अपॉइंट करने के लिए 40 करोड़ रुपए हमें जमा करना है। कितने? 40 करोड़। किसी यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी के जो है ना वो मतलब है कि उसकी पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है। कोई 10 करोड़ मांगती है, कोई 20 करोड़, कोई 40 करोड़, एवरेज 40 करोड़। और जितना पैसा डोनर देता है उससे 3 गुना पैसा यूनिवर्सिटी लगाती है। अब एक प्रोफेसर को अपॉइंट किया किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो एक प्रोफेसर अपॉइंट किया तो इसका मतलब यदि 40 करोड़ हमने जमा कराए तो 120 करोड़ यूनिवर्सिटी के कितने हो गए? 160 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी में एक अलग फंड में रहते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी ने 120 करोड़ जमा कराए उसके ब्याज से उस प्रोफेसर को जब तक यूनिवर्सिटी है तब तक उसको सैलरी देंगे। और जो 40 करोड़ डोनर ने दिए उसके ब्याज से वो जो प्रोफेसर है रिसर्च करेगा, पूरे वर्ल्ड में घूमेगा, इंडिया में भी आएगा, उसके स्टेशनरी, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका एयर फेयर, ये सारे खर्चा उसके इंटरेस्ट है। तो ये क्या ऑटो मोड है, मतलब एक बार एक चेयर एस्टेब्लिश हो गई उसके बाद यूनिवर्सिटी को उस पर्टिकुलर पोजीशन को की सर्वाइविंग के लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि जो भी जेनोलॉजी में कोई मान लीजिए किसी ने PhD की और किसी ने सपोज MA किया, तो वो क्या करते हैं? पूजा पाठ, शादी कराना, मकान के नांगल कराना, फिर उसमें डाइवर्ट हो जाता है। स्कोप किसमें? नहीं, उसमें भी स्कोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें स्कोप नहीं। लेकिन इंडिया में जो जेनोलॉजी में मतलब है कि जो PhD कर रहे हैं या जो आगे रिसर्च कर रहे हैं, वो सारे रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच को छोड़ के और वो इन एक्टिविटीज, ये एक्टिविटी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्कोप की यदि बात करें तो रिसर्च ओरिएंटेड स्कोप ज्यादा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में यदि कोई एक PhD स्कॉलर है तो वो यूनिवर्सिटी उस स्कॉलर के लिए करीब 4 करोड़ रुपए खर्च करती है। कितने? 4 करोड़ रुपए उस पर्टिकुलर स्कॉलर के लिए, एक PhD स्कॉलर के लिए यूनिवर्सिटी खर्च करती है। कि यदि आपको अपना करियर बनाना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग द करियर और थोड़े कम समय में आपको टॉप में पहुंचना, करोड़ों में पहुंचना, तो ये फील्ड मैंने कहा था ना, यदि मेरी उम्र 18 साल की हो तो डेफिनेटली आई वुड हैव चूजन दिस फील्ड। मैं उस फील्ड को चूज करता हूं। सबसे कम मेहनत, धार्मिक काम, रिलीजियस वर्क और सबसे ज्यादा फायदा। ये देखिए एक बात और बता दूं, जब मैं 64 इयर्स की एज में मैं कर रहा हूं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू मी, कैसे आगे बढ़े, कैसे करें, 100% कर सकते हैं। पेरेंट्स भी कर सकते हैं, 60 साल का आदमी भी कर सकते हैं, 70 साल का आदमी भी कर सकता है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। फिर आपने सुना होगा एक ISJS है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, पुणे में है। अबे फिरोदिया जी, नाम सुना ना, फोर्स मोटर्स के ऑनर है। एक अकेले आदमी ने 450 करोड़ रुपए खर्च करके और एक म्यूजियम बनाया। कितने?
450 रुपए खर्च करके म्यूजियम बनाया। उस म्यूजियम को देखने की कीमत 1500 रुपए टिकट है उसका। और जैसे आपने अक्षरधाम देखा होगा ना, अक्षरधाम पूरा दिन, अक्षरधाम से कई गुना ज्यादा आपका जेनोलॉजी का म्यूजियम है। कभी आप पुणे जाओ तो उसको देखना जरूर। अभी इंटरनेशनल समर कैंप में मैं अभी जा रहा हूँ, 16 तारीख को मैं जा रहा हूँ। 1.5 महीने तक वहीं रहूंगा पुणे में, 1.5 महीने तक। और वहां आप वहां रहोगे तब तक फ्री दिखा दोगे। तो और वहां पे जो रहने की व्यवस्था है, फैसिलिटी 7 स्टार, मतलब 5 स्टार नहीं, 7 स्टार, और सारी चीजें फ्री, पैसा नहीं लगता। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, वो $750 वो लेते हैं। आपका कोर्स खत्म हो गया, वापस दे दो, वापस रिफंड दो। पर ऐसे नहीं कि आपने गया 10 दिन बाद मन नहीं लगा तो वापस आ गए। सो रियली इट्स देयर इज अ स्कोप। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बता दूं कि अभी नई पोजीशन जो अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश, मैंने कहा था ना, एक पोजीशन के लिए एवरेज 30 से 40 करोड़ रुपए डोनर देता है, उससे 3 गुना पैसा यूनिवर्सिटी देती है। कई बार हमारी इंटरनेशनल मीटिंग होती है। एक बार हमारे श्रीमान सिपाही दरबार साहब, इनको भी मतलब इनको भी मैंने ज्वाइन करवाया था। कभी पूछना हो तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं कि वो किस लेवल का काम हम लोग कर रहे हैं जेनोलॉजी में। हाँ, लेकिन ये पंथ बात नहीं है इसमें। दिगंबर शतंबर तेरापंथी 20पंथी मूर्ति मार्गी वो नहीं, जैन विज जैन, ओनली जैन। ठीक है, कहीं डिफरेंस आता है, जैसे मान लीजिए कि मल्लीनाथ भगवान वहां पे उनके स्त्री पर्याय में मोक्ष गए थे, वो बता देते कि दिगंबर संप्रदाय में ये लिखा हुआ, श्वेतंबर में लिखा, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप इस चीज को फॉलो करो। वो सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस संप्रदाय में लिखी है, आपस में उलझते नहीं। तो अभी जो पोजीशन एस्टेब्लिश हुई है, इजराइल में हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, यूएस में जॉर्ज कॉलेज में, इस तरह से कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में टोरंटो में, बर्मिंघम में, बनारस हिंदू, अपने इंडिया में भी 2 पोजीशन एस्टेब्लिश हुई है, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डेक्कन कॉलेज पुणे, और एक नेपाल में लुम्बिनी बौद्धिक यूनिवर्सिटी। फिर ये एकेडमिक पोजीशन नॉर्थ अमेरिका में ये सारी पोजीशन है। अच्छा, एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात बताऊं, डोनर पैसा देता है लेकिन कभी वो उसका नाम नहीं देता। सारी पोजीशन तीर्थंकरों के नाम से, सारी, ऐसा नहीं डोनर कि मैंने पैसा दिया तो मेरे नाम से चेयर एस्टेब्लिश करो। आप ये देखिए, यदि चेयर के ये नाम देखें तो ये श्री पार्षद प्रेसिडेंशियल चेयर यूएस में, इस तरह से मोहिनी जैन प्रेसिडेंशियल चेयर, भगवान विमलनाथ, श्री राजचंद्र चेयर, ये राजचंद्र जो अपने है ना आकाश आश्रम, आपको जानना होगा, अपने महात्मा गांधी के गुरु थे वो। फिर भगवान सूर्यनाथ चेयर, फिर श्री आदिनाथ चेयर, भगवान सुभाषनाथ चेयर, भगवान अभिनंदन चेयर, फिर जय जैन हिंदू डेकर, ये यूएस में, ये सारे अभी पोजीशंस ये सारे एस्टेब्लिश हुई है। देन कनाडा में ये सारे ज्ञान मंदिर से, ज्ञान कंचन जैन एंडोर चेयर, भगवान शीतलनाथ पोस्ट चेयर, फिर चंद्रमोहन जैन मेमोरियल लेक्चर, इसी तरह से ये हार्वर्ड कॉलेज में रूपलाल जैन एनुअल लेक्चर सीरीज, ये टोरंटो कनाडा में, ये सारे कनाडा में। फिर अपन ये यूके की बात करें तो ये सारे प्रोफेसर। और आपको पता है जितनी जैन चेयर्स है 95% जो नॉन जैन, 95% जो प्रोफेसर हैं जिनको करोड़ों रुपए सैलरी मिल रही है, और सैलरी कौन दे रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं। और प्रोफेसर कौन है? अजैन, नॉन जैन। वो फॉलो करते हैं रूल्स रेगुलेशन, सारा फॉलो करते हैं, रात को खाना नहीं खाते हैं, वीगन समझता ना, दूध का आइटम नहीं लेते हैं, सारे फॉलो करते हैं, लेकिन 95% लोग अजैन। अब मेरे को ये बताओ, मैं यदि आपको एक चीज पूछूं कि आपको करोड़ों की सैलरी मिलेगी और एक प्रोफेसरशिप के लिए आप तैयारी करो, तो क्या आप इसमें रेडी नहीं होंगे? एक तो रिलीजियस काम, वही अपन धर्म का काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, रिलीजियस काम के साथ में एक मन को शांति मिलती है कि अपन कोई गलत काम। दूसरा, रेपुटेशन, पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिलता है। तो ऐसा काम क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ऐसा काम? तो ये सारी जो पोजीशंस है वो यूके में है। फिर अपन बात करते हैं यूके में ये एक्सपोर्ट सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, एक भगवान सुमतिनाथ जैन पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशन। फिर अपन इजराइल में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक पोजीशन है,
लेकिन आप ये नाम देखो, ये सारे अजैन, कोई भी हिंदू नाम या जैन नाम नहीं। फिर अपन बात करते हैं यूरोप में, तो जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, इटली, बेल्जियम, यहाँ पे। और लेकिन ये प्रोफेसर के नाम देखो, ईवा, ये क्लेयर, वोल्टेयर। फिर पाकिस्तान में भी है 2 जैन से, मोहम्मद हमीद और जाहिद मोहम्मद। फिर फिलीपींस में, तो ब्राजील में, और ये साउथ अफ्रीका, नेपाल, कीनिया, इनमें भी है। एक हमारे व्यवहार में कहावत है, क्या कहावत है? यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो मरना आपको पड़ेगा। आप चाहोगे पड़ोसी मरे और स्वर्ग में आप जाओ, ये संभव नहीं। आप मेरी बात समझे ना? पड़ोसी मरे और आप स्वर्ग में जाओ, ये संभव नहीं। 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता। कितने? 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य जन्म मिलता। और उस मनुष्य जन्म को आप, छोटी सी कोई बात है, उस बात के लिए आप इतने बड़े डिसीजन ले लेते हो। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। जो हमारे बच्चों ने जैसे सवाल पूछे, रियली मेरे को गर्व है अपने दशा नरसिंहपुरा समाज के बच्चों के ऊपर कि वो चाहते हैं। आप चाहते हो ना इस तरह के सेमिनार होते रहे? जो चाहते हाथ खड़े करो कि इस तरह के होने चाहिए। पहली बार इस सभी के हाथ खड़े हुए, एक बार सभी का आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपने इंटरेस्ट शो किया। 87 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है, कुछ कारणवश कुछ हमारे समाज में डेथ भी हो गई, तो उस वजह से कई सारे बच्चे नहीं आ पाए, या लोकेशन या लास्ट मोमेंट में शायद हमारी तरफ से तो मिस्टेक रह गई होगी, हम कॉल नहीं कर पाए। लेकिन जितने बच्चे हैं उन सबका स्वागत है। ये जो सेमिनार है, ये पहला सेमिनार नहीं है, इसके बाद में फॉलो प्रोसीजर। फॉलो का मतलब आपने जो 3 बेस्ट करियर सेलेक्ट किए, अब उस 3 बेस्ट करियर में आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना, उसकी तैयारी कैसे करनी, कौन से कैसे कोचिंग करे, कैसे तैयारी करे, कौन सी किताबें पढ़े, आप समझ रहे ना? तो उसके लिए हम आपसे जो दशा नरसिंहपुरा प्रोफेशनल फोरम है, लगातार या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। मेरे समाज का, आदरणीय अध्यक्ष जी का, हमारे महासभा के अध्यक्ष जी का, सभी का, और नवयोग मंडल का, और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने पेशेंटली आपने सुना और इसमें इंटरेस्ट हो गया। थैंक यू। जय जिनेंद्र। थैंक यू डॉक्टर जेतावत साहब। आज आप इसने इस सेशन में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आपका यह मार्गदर्शन निश्चित ही बच्चों के लिए भविष्य में अत्यंत उपयोगी एवं सही राह दिखाने वाला सार्थक। धन्यवाद। थैंक यू।